सचमुच भारतीय इतिहास तो वीरता की गाथाओं से भरा पड़ा है। यहाँ जन्म लेने वाला हर बच्चा ही इतना वीर है। और आज हम होराइजनर्स भारत के एक ऐसे ही शूरवीर बालक को आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। So our dear parents, please welcome शुभांशी, Parul, ऋतिक शर्मा, Sahil वंश चौधरी with huge sound of applause. Where is Bharat? Oh, he is sleeping inside. Shakuntala, how beautiful and lovely looks your child. Why don't you tell him about his father? How should I tell him that his father has forgotten me? But you must tell him that he is a prince and a son of great King Dushyant. Yes, I will tell him, but now he is too young. Where are you? Oh my child, you have woken up. Come here, my child. Ma, could I saw my father in my dream? When will he come back? Oh my child, don't worry. He will come back soon. Oh, you must be hungry. Please eat some fruits, my child. No, take it. Ma, now I can play. Okay, but don't go alone and so far. Bharat, please wait for me. Don't run. Come, catch me. Bharat, you have become very naughty. I can't run so fast. Go and play with your friends. Oh dear lion, open your mouth and I will count your teeth. 1, 2, 3. Oh boy, come here. What a brave boy you are. You are playing with the lion's cub. Brave boy, I am the king of this jungle. These animals are my friends and I play with them daily. Oh, your amulet has fallen there. Don't touch. What happened? It is a magic amulet given by Sage Maricha. Sage Maricha? What happens if I touch it? If someone accepts his parents' touches, it would change into a snake and bite that person. I am not afraid. Let's see what happens if I touch it. Oh, it does not change. It means you are his father. His father? How can it be possible? Who is your father, my child? My father is the King Dushyant. He is the king of Hastinapur. King Dushyant? I am King Dushyant. What is your mother name? My mother name is Shakuntala. Shakuntala? Oh, you are my child. Where is your mother? I want to meet her. Please take me to her, my child. Oh, you are King Dushyant? Shakuntala has been waiting for you.
I will go and tell her. Shakuntala, Shakuntala. Come with me. Our home is there. Ma, Ma, come out. See who has come to meet you. What happened, my child? Oh, King Dushyant, is I am dreaming? Have you remembered everything? Shakuntala, please forgive me. I have forgotten everything. But when I saw your ring, I remember everything. At last, God has heard me. See, this is Bharat, your son. Bharat, he is your father. Very beautifully performed. Really, Now our we will live horizons together. make a Let's fresh go to our memory palace. of that time in our mind. हाँ, और इसी वीर बालक और साहसी राजा की वीरता, साहस और निडरता को देखकर ही हमारे इस धरती का नाम भारत पड़ा। राजा भरत के अतिरिक्त भी अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी वीरता ही नहीं अपितु वीरता अपने पराक्रम से ही नहीं अपितु अपनी कर्मनिष्ठा, अपनी नीतियों से भी इस देश को महान बनाया। अहिंसा के पथ को अपनाते हुए अनेक राजाओं ने भारत देश को महान बनाया। अपनी शांतिपूर्ण नीतियों का पालन करते हुए हमारी पावन मातृभूमि को और भी अधिक पावन कर दिया। Really, that time was the golden period of Indian history. India is a country where a lot of brave kings took birth and ruled over this country with peace. One of them was the great Emperor Ashoka. He was very violent king in his starting ruling time. हाँ, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अनेक युद्ध किए, परंतु कलिंग युद्ध एक ऐसी घटना थी जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने प्राण दिए। Yes, and when Emperor Ashoka saw the dead bodies in the Kaling war, his heart changed and he decided to adopt Buddhism. So, ladies and gentlemen, please welcome Sparsh, महक, Abhijit, अभिलाष, Ujjwal, हर्ष यादव, Pragya, मुस्कान, Aditi Ranjan, अदिति गोयल, Nandini, मनस्वी, Shelly. with huge sound of applause. एकांत। सम्राट अशोक किसी बात को लेकर चिंतित हैं और उनके मन में कुछ विचार चल रहा है। चार साल से युद्ध हो रहा है और हम कलिंग को अब तक नहीं जीत पाए हैं। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं और लाखों ही घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। इसका परिणाम क्या होगा? महाराज अशोक की जय हो। महाराज, आपके लिए शुभ समाचार है। क्या शुभ समाचार है? महाराज, गुप्तचर यह समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज युद्ध में मारे गए। कलिंग के महाराज मारे गए हैं? बोलते क्यों नहीं हो? चुप क्यों हो? क्या कहूँ महाराज, कलिंग के किले के फाटक तो आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कहूँ कि हमने कलिंग जीत लिया है। किले के फाटक आज ही बंद हैं? हाँ महाराज। बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन हम स्वयं करेंगे। कल या तो कलिंग के किले के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। जाओ। जो आज्ञा महाराज।
अशोक की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो। सेनापति, आज सेना का संचालन हम स्वयं करेंगे। आज हम मगध का झंडा कलिंग के किले पर अवश्य फहराएंगे। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर यह प्रण करें कि आज या तो कलिंग के किले पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मौत की गोद में सो जाएंगे। महाराज, हम प्रण करते हैं कि कलिंग के किले पर मगध का झंडा फहरा कर रहेंगे। चलो सैनिकों, कलिंग पर आक्रमण किया जाए। सम्राट अशोक की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो। सम्राट अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एक छोटे से राज्य कलिंग पर आक्रमण करने को तैयार हैं। तो आइए देखते हैं। बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। उसी सेना से तुम्हें आज लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि अपनी मातृभूमि को पराधीन होते देखने से पहले अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर लोगी। हम प्रण करते हैं राजकुमारी कि हम सम्राट अशोक की सेना से अवश्य बदला लेंगे। यह कौन है? क्या देवी दुर्गा ही कलिंग के रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? सभी सैनिक स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों की भी हत्या करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, मैं स्त्रियों की हत्या नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं ये पाप नहीं करूंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ मत उठाना। देवी, तुम कौन हो? मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मुझे उससे द्वंद्व युद्ध करना है। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ। परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। क्यों महाराज? सैनिकों, तुम भी अपनी तलवारें फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं भुलावे में नहीं आ सकती। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। यह क्या महाराज? सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ मत उठाना। जाइए महाराज, स्त्री अपनी हत्या पर वार नहीं करेगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। चलो बहनों। सैनिकों, आज के बाद हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। राजकुमारी पद्मा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि जाने अनजाने में मेरे द्वारा लाखों निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। ऐसा करने से मैंने न केवल उनको बल्कि उनसे जुड़े लाखों को कष्ट दिए हैं। बुद्ध जी ने सत्य ही कहा है कि जीव हत्या पाप है। अनजाने में मुझसे यह पाप हुआ है और मुझे इसका पश्चाताप करने के लिए भगवान बुद्ध की शरण में जाना होगा। हम भी आपके साथ हैं महाराज। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। और इस प्रकार युद्ध में हुई हिंसा और राजकुमारी पद्मा की बात सुनकर अशोक ने फिर कभी युद्ध ना करने का प्रण लिया। Amazing! What a beautiful performance! Really, our horizons show us peaceful countries the